Pakistan, going across to Patikrit Pen, strategic expert. Patikrit, can we just be hoping for the implosion of a dangerous neighbor, that their own problems surmount to such an extent that they won't attack? But as Major General A.K. Siva was saying, that these attacks are actually increasing because they want to divert from their own problems. How do we stop only countering these attacks, and how do we get to thwarting them? Well, 100% neutralization of all attacks or preempting will be very challenging. But let me tell you, General Siva is right in certain ways. I'll tell you what my perception of this is. As Pakistan continue to implode from inside, and that is something which is good for the whole world. I would be happy if it happens. But, the idea of Pakistan is basically imploding from inside, whether it is Tehreek-e-Taliban or other groups. So they are perhaps desperately trying to trigger something which would in retaliation, which would in reciprocation create a major retaliation or retribution by India. And that, I think the deep state of Pakistan is hoping would galvanize the state of Pakistan. Because today, if you look at it, the state of Pakistan or the idea of Pakistan has no relevance per se, because Tehreek-e-Taliban and the Balochistan-based groups have already started declaring a sovereign country on their own or a sovereign government of their own. In Gilgit-Baltistan region, they're asking for doing away with Pakistan and want to join India. So I think for the deep state of Pakistan, the presumption is anything that will trigger an Indian retaliation might galvanize Pakistan altogether, which I think may not happen. The second is, of course, the issue of India's G20 presidency. They would definitely try to create turmoil because some of the key major summits would not only be in Jammu, but also in Leh. The other aspect is that, yes, the drone issue is a challenge. I think considerable amount of IEDs may have come in, although a great proportion get caught. But the possibility of sticky bombs being used remains very profound. I don't think these are Fidai attacks. Patikrit, thank you for your expert opinion and bringing us that much needed perspective to this very concerning incident. At this point in time, we're also joined by my colleague Rajat Vora from the location. Rajat, what are you picking up? 6 injured. What is the status and what is the extent of damage that those twin blasts have done? जी बिल्कुल, ये बड़े ब्लास्ट हुए हैं। आपको बता दें कि 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे से पहले 2 बड़े ब्लास्ट जम्मू के नरवाल इलाके में, ट्रांसपोर्ट नगर में, यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर यहाँ काफ़ी बिजी इलाका रहता है। और फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी ने पूरे इलाके को कॉर्डन कर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। बेसिकली पुलिस ये चाहती है कि पहले पूरे इलाके को सैनिटाइज कर दिया जाए, तभी उसके बाद अलो किया जाए। और फिलहाल के लिए सभी जो दुकानें हैं उन्हें भी बंद कर दिया गया है। लोगों को पीछे रहने की हिदायत दी जा रही है। इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार लोगों को यहां से पीछे हटा रही है, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये एक बड़ा आतंकी हमला है, हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि आतंकी हमला है, पर जिस तरह की इंटेंसिटी थी, इससे लगता है कि एक प्लान्ड ब्लास्ट जो है वो किया गया, जिसमें कि 6 लोग जो हैं इंजर्ड हुए हैं। और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी यहां पर मौके पर पहुंचकर यहां पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रही है। पुलिस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती कि यहां पर अगर कोई और बॉम्ब जो है वो प्लांट किया गया है या आईडी प्लांट की गई है, तो उससे पहले सैनिटाइज कर दिया जाए पूरे इलाके को, उसे निष्क्रिय कर दिया जाए और उसी के बाद यहां पर लोगों को अलो किया जाए। आपको बता दें काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका ये है। और एक तस्वीरें यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे, ये ब्लास्ट कितना ज्यादा था वो वहां दूर जो है वो यहाँ गाड़ियों में ब्लास्ट हुआ। और उसके बाद ये तस्वीरें जो है अपने आप में बयान करती हैं एक आंच की कितना बड़ा इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था। वो आप गाड़ी देख सकते हैं किस तरह से इसके परखच्चे जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर उड़ चुके हैं। और इसी तरह का हाल जो है वो आगे जहां पर पुलिस के ऑफिशियल्स आप देख सकते हैं, इंडियन आर्मी गाड़ी दे सकते हैं, वहां पर भी एक और इसी तरह की गाड़ी है जहां पर ये जो वाकया जो है वो पेश आया है। फिलहाल के लिए पुलिस और इंडियन आर्मी इंश्योर कर रही है कि कोई भी और ब्लास्ट ना हो, क्योंकि हमने राजौरी जिले में देखा था जो पहले एक टारगेटेड किलिंग गई जिसमें 7 लोग जो है वो जिनकी जान चली गई। और उसके बाद अगले ही दिन जो है वो एक और आईडी ब्लास्ट जो है वो एक घर में हुआ, जिसमें कि इंडियन आर्मी फिलहाल के लिए और जम्मू कश्मीर पुलिस उस वाकये को देखते हुए किसी भी तरह का रिस्क यहाँ पर नहीं लेना चाहती। और जिस तरह से आपको हमने बताया ये काफी भीड़ भाड़ वाला
वाला इलाका रहता है, बिजी इलाका है, और यहीं से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो टच करता है, जहां पर कुछ ही दिन पहले 4 आतंकी जो हैं उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस ने और इंडियन आर्मी की मदद से, एसओजी की मदद से यहां पर मार गिराया था। और इसीलिए पुलिस और इंडियन आर्मी को शक है कि ये एक बड़ी आतंकी वारदात जो है वो हो सकती है। इसीलिए पुलिस यहां पर किसी भी तरह का रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहती। और साफ तौर पर आपको बता दें, ये तस्वीरें जो अपने आप में बयान करती हैं कि कितनी भीड़ भाड़ वाला इलाका था। आप देख सकते हैं, रहायशी घर भी हैं, दुकानें कई सारी हैं, ट्रांसपोर्ट नगर में गाड़ियां लोग ठीक करवाने आते हैं। कश्मीर घाटी से भी कई सारे लोग जो हैं वो इस समय फिलहाल के लिए जम्मू है, और जब भी किसी को भी गाड़ी की किसी भी तरह की शिकायत होती है तो इस इलाके में ही आते हैं। भीड़ आप देख सकते हैं, पुलिस इस पर ही कोशिश कर रही है कि इनको पूरी तरह से यहाँ पर हटाया जाए। और फिलहाल के लिए जो 6 लोग जो इंजर्ड हुए हैं उन्हें शिफ्ट किया गया है, और इलाके की जो सैनिटाइजेशन है वो यहाँ पर की जा रही है। और पुलिस और इंडियन आर्मी यहाँ पर कॉर्डन कर ये इंश्योर कर रही है कि कोई और जो है वो इस तरह का बॉम्ब प्लांट जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया। तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच चुकी है, और जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर इंश्योर कर रही है कि जो लोग भी यहाँ पर इंजर्ड हैं जल्द से जल्द उन्हें जो हेल्थ फैसिलिटी है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके, उन्हें जल्द से जल्द जो है वो शिफ्ट किया जा सके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, क्योंकि नज़दीकी अस्पताल है और वहाँ पर सभी इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो उपलब्ध होती हैं। इसीलिए किसी भी तरह का रिस्क जो है वो यहाँ पर पुलिस नहीं लेना चाहती। और तस्वीरें अपने आप में बयान करती हैं कि कितना बड़ी इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था, और उसके बाद 6 लोग जो इंजर्ड हुए हैं फिलहाल के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू शिफ्ट किए गए हैं। और पुलिस और जम्मू कश्मीर की जो इंडियन आर्मी है वो यहाँ पर इंश्योर कर रही है कि सभी लोग जो है पूरी तरह से सुरक्षित रहें, और आगे पीछे जितने भी इलाके हैं, जो दुकानें हैं, जो गाड़ियां हैं, उन्हें जो है सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि कोई और बॉम्ब या फिर आईडी जो है वो यहाँ पर प्लांट ना की गई हो। जी रजत जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं, दिस इज अ वेरी बिजी एरिया, इट हैज रेसिडेंसेस एज वेल, दिस इज अ मार्केट एज वेल, और बहुत भीड़ भाड़ है वो एरिया में, तो वो जो नुकसान था वो और ज़्यादा भी हो सकता था, क्योंकि ये तो प्लान्ड अटैक लग रहा है, ये जो ट्विन ब्लास्ट हुए हैं उधर। जी बिल्कुल, हो सकता है कि ये और भी बड़ी आतंकी गतिविधि हो सकती थी। हालांकि ये गनीमत रही कि इसमें अभी तक किसी की जान नहीं गई है। और जिस तरह का भीड़ भाड़ का इलाका, मैं वापस से अपने कैमरामैन साहिबाज की मदद से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से ये भीड़ भाड़ का इलाका है, और इसीलिए पुलिस ये पहले क्लियर कर रही है, सभी लोगों को पीछे हटा रही है, ताकि ये लोग जो है वो आगे आकर किसी और वारदात का जो है वो शिकार ना कहीं बन जाए। और क्योंकि ये भीड़ भाड़ का इलाका रहते हैं, हाईवे से टच्ड इलाका रहता है, इसीलिए पुलिस यहाँ पर 2400 घंटे यहाँ पर तैनात रहती है। 26 जनवरी को देखते हुए यहाँ पर अलर्ट भी जो है वो जारी किया गया था, बट बावजूद इसके एक बड़ी वारदात जो हुई है, ये पुलिस के लिए, सभी लोगों के लिए एक चिंता का विषय, और सभी इस समय सदमे में है कि किस तरह से ये एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। और हो सकता था कि इसमें कई सारी और जानें भी चली जाती, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें साफ तौर पर बताती हैं कि ये जो लोग हैं यहाँ पर गाड़ियाँ अपने ठीक करवाने आते थे, जिसमें कि कई सारे जो मजदूर हैं वो भी यहाँ पर काम करते थे, जो कि गाड़ियाँ ठीक करते थे। इसके अलावा जो आम जनता है वो भी यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ ठीक करवाने आती थी। तो सभी लोग जो हैं, हजारों की तादाद में लोग रोज यहाँ से गुजरते थे। इसीलिए यहाँ पर अगर ये आतंकी हमला है तो पुलिस साफ तौर पर ये इस पर एक बड़ा चिन्ह है कि किस तरह से ये ब्लास्ट किया गया, और आईडी है या स्टिकी बॉम्ब से, क्योंकि हमने देखा था हाल ही में स्टिकी आईडीज का भी इस्तेमाल कर आतंकी जो है वो वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और जम्मू को निशाना बनाने की जो साजिश लगातार आतंकी रच रहे हैं, उसमें ये भी एक प्लान जो है वो हो सकता है कि 26 जनवरी से पहले लोगों को डराने के लिए, लोगों में दहशत फैलाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान हर जगह मुंह की खा चुका है, हर जगह उसे जो है वो वहां पर बेइज्जती का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, बट दूसरी तरफ इस तरह के आतंकी बेचकर, इस तरह की वारदातें करवाकर, अगर ये आतंकी हमला है तो ये एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो आतंकियों ने रची, और उसमें 6 लोग जो इंजर्ड हुए, हो सकता था कि ये बड़ा आतंकी हमला हो जाता, और इसमें कई सारे और लोगों की जान भी जो है वो जा सकती थी। गनीमत रही कि 6 लोग अभी इंजर्ड हुए हैं, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू शिफ्ट किया गया है। जी।